So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with the ninth unit of our NCC book, which is Services, Tests and Interviews. So here at the above portion, I have written some full forms of NDA, CDS and FCAT. So NDA stands for National Defense Academy, CDS stands for Combined Defense Services and FCAT stands for Air Force Common Admission Test. So these are the basic full forms, but still if anyone didn't know about it, so just for the clarification, I have wrote the full form. So let's get started. The candidates of defense services, when clear their written exams of NDA, CDS or FCAT, are just halfway through, for not every one of them becomes a defense officer. So जो भी candidates इन सारे exams को clear कर लेते हैं NDA, CDS या FCAT को, उन्होंने अपना आधा लक्ष्य तो पूरा कंप्लीट कर लिया है, बट स्टिल अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो डेफिनेटली एक डिफेंस ऑफिसर बनेंगे. दे स्टिल हैव टू क्लियर सेवरल राउंड ऑफ टेस्ट, ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरव्यूज कंडक्टेड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. सो उनको टेस्ट क्लियर करने के बाद भी बहुत सारे टेस्ट, जीडी और इंटरव्यूज क्लियर करने पड़ेंगे जो कि एसएसबी करवाता है, यानी कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड करवाता है. इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड दैट दीज आर नॉट टेस्ट ऑफ सम क्रैम्ड मटेरियल और एनी मैटर कलेक्टेड और memorized. These are hard and genuine tests of one's personality through the role of knowledge of various facts and figures regarding multifarious aspects of life, and fields of knowledge cannot be altogether ruled out. सो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो टेस्ट होते हैं ये ऐसे टेस्ट नहीं होते जिनके लिए हम अपना रट्टा या फिर याद करके चले जाएं और ये पास हो जाएंगे. ये एक जेन्युइन टेस्ट होते हैं हमारी एक नॉलेज के, कितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वेरियस टॉपिक्स को लेके और कैसे हम उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में. Every human being has a distinct personality. As such, every person differs from every other person in various ways, including physical features, mental makeup, moral and spiritual beliefs and convictions, etc. So, हर एक ह्यूमन बीइंग की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है. तो सिमिलरली उसके फिजिकल फीचर्स भी अलग होते हैं, उनका मेंटल और मोरल और स्पिरिचुअल बिलीव्स भी अलग अलग होते हैं. सो इसीलिए अलग अलग टेस्ट और इंटरव्यूज किए जा सकते हैं ताकि वो कैंडिडेट को असेस कर सकें. एवरी एस्टैब्लिशमेंट लेज स्ट्रेस ऑन सर्टन बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स विच आर कंसिडर्ड पार्ट एंड पार्सल ऑफ पर्सन's personality and which, though they may not vary in kind, vary in degree considerably. The interviewers at SSB often try to measure the extent of such personality traits in each candidate in various ways. तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स होती हैं या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उनकी स्ट्रेंथ होती है तो वो उसको एक तरीके से उसको असेस करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं. At SSB, in addition to the interview, the candidates are put to intelligence test, both verbal and non-verbal, designed to assess their basic intelligence. They are also put to group tasks such as group discussions, group planning, outdoor group tasks, and asked to give brief lectures on specified subject. All these tests are intended to judge the mental and physical caliber of candidates. In broad terms, this is really an assessment of not only the intellectual qualities but also one's social traits and interest in current affairs, along the test of his mental and physical endurance and stamina. So SSB के इंटरव्यू में आपको बहुत सारे इंटेलिजेंट टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल डिजाइन किए जा सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप टास्क भी दिए जाते हैं और इस तरीके के टेस्ट दिए जाते हैं जिससे आपकी मेंटल और फिजिकल कैलिबर को जज किया जाता है. The right approach to a test or interview is a balanced, non-impassioned approach based on reason and with a clear understanding and realization of the paramountancy of test, interview or task at hand. So जो right approach होती है किसी भी टेस्ट या इंटरव्यू को क्लियर करने की, वो एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, नॉन इम्पैशनड होनी चाहिए. ठीक है, यानी कि यू आर पैशनेट फॉर समथिंग. ठीक है, और एक रीजन होना चाहिए कि वाई यू आर परस्यूइंग सच थिंग जो कि आप बोल रहे हैं. ठीक है, there is no denying the fact that getting through a test or interview is an art, but you have to cultivate it with care and effort. Remember that a success in SSB interview means a glorious career with defense services. So अगर आप SSB का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, so that means कि आपका डिफेंस सर्विसेज में जो करियर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे. Therefore, irrespective of your academic or family background, if you prepare well and perform on the expected lines and standards, you can surely be selected for a defense officers training course at SSB. So, irrespective कि आपके academic qualifications क्या हैं, क्या आपकी family background है, उसके अलावा अगर आप अपनी expected lines पर बहुत अच्छा perform करते हैं, so you can definitely clear the SSB interview. It is a common phenomenon observed that candidates believe that they can get
through the SSB test and interview by just reading textbooks or by joining a crash course at local coaching center. Unfortunately, this is not true, as there is no shortcut to success at SSB. It needs systematic and consistent approach to prepare for it. The selectors are not interested in the mucked up knowledge and statistics from the textbook. What they want is the application of knowledge and general awareness with clear thinking and expression and a sound mind and body as well. Reading daily newspapers, news magazines, watching TV news, practice of English conversation, discussion, lecturates, physical exercise and sports activities are essential for this. ठीक है, हमने अक्सर ये देखा है कि कोई भी कैंडिडेट अगर उसको एसएसबी का टेस्ट या इंटरव्यू क्लियर करना है, सो या तो वो किसी लोकल कोचिंग सेंटर पर एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं या फिर टेक्स्ट बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं. बट जो भी वहाँ पे आपकी ऑफिसर्स होते हैं उनको मकदब नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है. जो सिलेक्टर्स हैं आपके, दे नीड कि आपको उस नॉलेज की एप्लीकेशन आनी चाहिए इन रियल लाइफ. ठीक है, आपका साउंड बॉडी माइंड होना चाहिए, एक क्लियर जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है और उस पर आपके क्या ओपिनियन है. अ डिफेंस सर्विस ऑफिसर इज नो लेस देन एन इंजीनियर और डॉक्टर और एन एडमिनिस्ट्रेटिव और बैंक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कैडर, पे, पर्क्स और सोशल स्टेटस. कोई भी डिफेंस सर्विस ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव इन किसी भी टर्म में, चाहे वो पे, पर्क्स या सोशल स्टेटस, इनमें से वो किसी भी पोस्ट से उनसे कम नहीं है. द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस कंडीशन आर सुप्रीम अपार्ट फ्रॉम सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड सर्विंग द कंट्री विद द हाईएस्ट ऑनर्स एंड ग्लोरी. इस करियर में जो जॉब सेटिस्फैक्शन होती है, दैट इज द हाईएस्ट. ठीक है, बिकॉज वी आर सर्विंग आवर कंट्री डायरेक्टली. व्हेन अदर्स जस्ट वर्क टू अर्न मनी फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर फैमिलीज, अ डिफेंस सर्विस ऑफिसर वर्क्स ट्रूली फॉर द ऑनर एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री एज टू सेव द लाइव्स ऑफ हिज फेलो कंट्रीमैन. जब सारे लोग अपने कॉर्पोरेट में पैसा कमा रहे होते हैं टू फुलफिल देयर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर लाइफ, उस टाइम एक डिफेंस सर्विस ऑफिसर ट्रूली ऐसा काम करता है कि वो अपने फेलो कंट्रीमैन को सेव कर सके और अपनी कंट्री को अपनी सर्विसेज ऑफर करता है. This not only pays back handsome in return, but also bring immense sense of patriotism, glory and achievement, making his work and life truly meaningful for him, his family back home, fellow countrymen and the whole country. The life of a defense service officer is a most complete, vibrant and meaningful in all respect, and that is why is the most sought out profession of our youth. So this is a very respected passion. ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड करियर है इन आइज ऑफ एवरीवन. सो इसीलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा सॉर्ट आउट पैशन है फॉर आवर टुडेज यूथ. नाउ व्हाट द इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. Okay, the interviews tries to find out the medium of the test and interview how far and how best you can fill the bill for the job in view. Now put yourself for a moment in his shoes. If you are an interviewer, what things you would like to do about the individual whom you wish to select? What personality and characteristic traits of the individual you would be interested to discover? So here is a checklist. So now let's imagine कि आप एक इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हैं, आप एक सेलेक्टर हैं. तो आप क्या सोचेंगे सबसे पहले अगर आपको किसी को सेलेक्ट करना है? सो द फर्स्ट थिंग इज अपीयरेंस एंड बियरिंग. व्हाट इज हिज फर्स्ट इंप्रेशन लाइक? इज ही एबल टू मेक अ फेवरेबल इंप्रेशन? डज ही क्रिएट एन इम्पैक्ट? हाउ आर हिज ड्रेसिंग हैबिट्स एंड ग्रूमिंग? इज अ cheerful and bright? Does he smile? Is he neat and clean? Does he never pleasant or good manners? Does he observe the rules of etiquette? So ये बेसिक मैनर्स होते हैं कि आपको अच्छी तरीके से अपीयर होना है. ठीक है, यू शुड बी यू शुड हैव अ स्माइलिंग फेस. आपको नीटली और क्लीनली ड्रेसअप होना है. ठीक है, यू शुड डेवलप योर पर्सनैलिटी इन सच सेंस दैट योर अपीयरेंस अट्रैक्ट्स देम. So level of intelligence. Is he intelligent as well as sensible? Does he show good awareness? Has he a quick and good grasp? Is he really well read? Has he got good general knowledge and sound common sense? What is the extent of depth of his knowledge in regard to the job he has applied for? What are his qualifications and experience? How has he acquainted himself in his studies? Can he learn quickly and improve by training? Does he reveal imagination and foresight? Is he mentally alert? सो उसे जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई करा है उसके बारे में उसको क्या नॉलेज है, क्या उसकी जनरल अवेयरनेस ठीक है, क्या वो उस नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लाई कर सकता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, कितनी जल्दी वो चीज़ों को ग्रास्प कर सकता है, कितनी जल्दी वो अडेप्ट हो सकता है न्यू सराउंडिंग्स में, क्या वो रियली सिचुएशंस को इमेजिन कर कर मेंटली उनके लिए डिसीजंस ले सकता है. सो दिस इज द टेस्ट अबाउट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस.
द नेक्स्ट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्या वो बात कर सकता है, क्या वो फ्लुएंटली बोल सकता है बिना रुके हुए, क्या वो अपने थॉट्स क्लियरली, क्रिस्पली और कोहेरेंटली अपने थॉट्स पब्लिक को कम्युनिकेट कर सकता है, क्या वो अपने आइडियाज फ्रीली, कन्विंसिंगली और पावरफुली पिचअप कर सकता है. सो इज ही एबल टू रीजन आउट इन अ लॉजिकल एंड रैशनल मैनर, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या वो लॉजिक और रैशनैलिटी के साथ बोल सकता है, क्या वो कन्विंसिंग कभी कभी साउंड करता है, या फिर डज ही स्पीक विद enthusiasm and interest to impress others, is he able to command or hold the attention of his audience, क्या वो ऑडियंस की अटेंशन या कमांड को रूल कर सकता है, प्रैक्टिकली वो जो बोल रहा है क्या वो बात सच है. सो दिस इज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो रिसोर्सफुल है, क्या उसने कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस करी है अपनी सक्सेस में, क्या वो वर्केबल सॉल्यूशंस निकाल सकता है किसी भी प्रॉब्लम के, क्या वो इंडस्ट्रियस, पेनस्टेकिंग या थॉरो है, डज इट डिस्प्ले द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, इज ही एबल टू स्टिक टू हिज ऑब्जेक्टिव, क्या वो अपने एक ही ऑब्जेक्टिव पर रुक सकता है, एंड डज नॉट डू रेड हेरिंग, यानी कि रेड हेरिंग और रेड टैपिज्म मीन्स अवॉइडिंग हिज वर्क, डज ही नो हिज ओन माइंड, क्या वो अपने आप को अच्छे से जानता है, क्या जो वो काम कर रहा है उस काम के बारे में जानता है, इज ही स्टडी एंड कंसिस्टेंट, और डज ही डू थिंग्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट, क्या वो अपनी डिसीजन सोच समझ के लेता है या फिर इम्प्रॉम्प्टेंस उसके डिसीजंस होते हैं. कैन ही कंबाइन हिज रिसोर्स जुडिशली विद एन आई फॉर इकोनॉमी, क्या वो अपनी रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से कंबाइन कर सकता है ताकि क्या वो इकोनॉमिकल है, क्या उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन. फिजिकल फिटनेस, क्या उसकी हेल्थ ठीक है, वो फिजिकली टफ और फिट है, क्या एफर्ट्स करता है वो फिजिकली फिट रहने के लिए, कितनी जल्दी वो थक जाता है, क्या उसका फैटीग टाइमिंग है, उसके क्या फिजिकल मूवमेंट्स है, उसकी एक्टिविटीज उसके बारे में क्या रिवील करती हैं. सो दिस इज अबाउट फिजिकल फिटनेस. डायनामिक क्वालिटीज, कितना इंथुसियाज्म है उसमें कितना इंटरेस्ट है ज्वाइन करने के लिए, वो कितना एक्टिव, एनर्जेटिक और लाइवली है, क्या वो उसको वो अपने अंदर की जो एक पैशन है क्या वो दूसरों को रिफ्लेक्ट कर सकता है, क्या उसके अंदर हेजिटेशन है, इज ही एंटरप्राइजिंग, क्या वो डिसीजंस ले सकता है या इनिशिएटिव को दिखा सकता है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन या टेनिसिटी है, क्या वो अच्छी तरीके से चीज़ों को ग्रैप्स कर सकता है. सो दिस इज रिलेटेड टू दैट आस्पेक्ट. देन वी हैव सोशल आस्पेक्ट कि क्या वो वार्म, फ्रेंडली या कोऑपरेटिव है, क्या वो एक टीम एफर्ट को लगा सकता है, अपने आप को सोशलेबल, हार्टी और चीयरफुल दिखा सकता है, क्या वो जल्दी से लोगों के बीच में घुल मिल सकता है, अच्छे से वो कंफर्टेबल है दूसरों की प्रेजेंस में. सो दिस इज रिलेटेड टू द सोशल एस्पेक्ट. देन वी हैव कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच द सेलेक्टर्स फाइंड इन अ कैंडिडेट कि क्या वो ऑनेस्ट, लॉयल और ट्रस्टवर्दी है, क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्या उसके फाइनेंशियल मोरल जो है वो स्ट्रांग है या नहीं, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, क्या उसके ऊपर हम ऐसी उसके अंदर सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म है या नहीं, उसके अंदर नेशनल प्राइड है या नहीं, क्या वो प्रेज वर्दी है या नहीं, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं, इज ही ट्रस्ट वर्दी और नॉट. सो दिस इज रिलेटेड टू द कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सनैलिटी. देन लीडरशिप क्वालिटीज, क्या उसके अंदर टीम स्पिरिट है, क्या वो अच्छे से दूसरों के साथ घुल मिल सकता है, क्या उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है कभी ग्रुप पे, इज ही केपेबल ऑफ इनकरेजिंग समवन एल्स, क्या वो अपने इंटरेस्ट दूसरे लोगों को बताकर उनसे वो काम करवा सकता है, क्या वो मोटिवेट कर सकता है दूसरों को या इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या वो स्मूथली और एफिशिएंटली चीजों को कैरी ऑन कर सकता है. सो दिस इज रिलेटेड टू द लीडरशिप क्वालिटीज. देन वी हैव ऑप्टिमिस्टिक लुक, क्या उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है या फिर वो चीजों को बहुत ही नेगेटिव सेंस में ले जा सकता है, क्या वो ब्राइट, प्रॉस्परस और हैप्पी फ्यूचर इमेजिन करता है अपना, उसके जो वर्ड्स हैं, उसका जो वे ऑफ थॉट है, उसका जो एटीट्यूड है या अप्रोच है प्रॉब्लम्स के थ्रू, क्या वो ऑप्टिमिस्टिक है या पैसिमिस्टिक है. So this is about the outlook. Then we have officers like qualities. So these are known as OLQs, that is officers like qualities. So ये officers like qualities आपको अपने अंदर डेवलप करनी होती हैं जिनको सेलेक्टर्स नोटिस कर लेता है by judging your personality. So the first one is planning an organization. So you should have effective intelligence. So effective intelligence refers to the capability to deal with practical situation and as per the requirement of the situation. कि इस situation के हिसाब से आप कितने ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ कर सिचुएशन के हिसाब से सॉल्यूशन निकालते हैं. Then we have reasoning ability कि आप कितनी अच्छी तरीके से सिचुएशन को कंक्लूड कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, कितनी अच्छी तरीके से आप रिसोर्सेज को प्लान या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपना आइडिया, पॉइंट या फिर जो भी आपका एक आइडिया है उसको कितनी अच्छी तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. देन सोशल एडजस्टमेंट,
कितनी जल्दी आप सोशल अडेप्टेबल होते हैं, क्या आप दूसरे लोगों के साथ कॉपरेट कर सकते हैं, क्या आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दिस इज रिलेटेड टू द सोशल एडजस्टमेंट. देन देयर इज सोशल इफेक्टिवनेस. सो सोशल एडजस्टमेंट इज मिंगलिंग अप विद द पीपल. सोशल इफेक्टिवनेस इज कि अपने आप को आप कैसे हाईलाइट करते हैं. क्या आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डू यू हैव अ स्पीड ऑफ डिसीजन, तुरंत आप डिसीजन ले सकते हैं किसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए. क्या आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि आप ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सके. क्या आप चेयरफुल हैं, क्या आप रिसोर्सफुल हैं. देन डायनामिज्म रिलेट्स कि आपके अंदर कितनी डिटर्मिनेशन है, आपका क्या पैशन है. सो व्हाट इज द आर यू करेजियस टू डू समथिंग न्यू, क्या आपके अंदर वो स्टैमिना है. सो दैट रिलेट्स टू द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस विच यू आर केपेबल टू हैंडल. सो नाउ यू नो व्हाट योर इंटरव्यूअर इज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट अबाउट योरसेल्फ. Naturally, he cannot ask you direct questions on such factors or expect to get correct or truthful answers for them. Therefore, he will try to get these details by making you talk about yourself, your activities, achievements, and dealing with others. Since you know his mind, you are aware of his requirements, why not take the initiative and present them yourself? It means that you should be ready to touch on such favorable incidents of your life and experience when the opportunity presents itself. So अब आपको ये आइडिया है कि इंटरव्यूअर आपसे क्या चाहता है. जब वो आप ये इतनी सारी चीजें वो एक साथ आपसे नहीं जान सकता, तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आपसे बोलेगा कि आप अपने बारे में मुझे कुछ बताओ. सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जब आप अपने आप को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर सकते हो अपनी नॉलेज के बेसिस पर और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर. सो डू नॉट कीप ऑन सेइंग yes or no monotonously all the time when questions are put to you. So this is a very common thing which candidates do, that if some officer or if some selecting officer ask you a question, you just repeat yes sir, yes ma'am, no sir, no ma'am. So you don't have to monotonously repeat this yes or no. First, understand the question fully and determine what exactly he wants to know. So first, what you have to do, you have to particularly assess the question which is asked from you. Then you have to analyze it as per your knowledge, and then you have to make an answer for that. Okay? So when he asks about your educational qualifications, sports activities, hobbies, domestic background, friendships and association, travel experience, job experience, reading habits, life's ambitions and so on, you will have all the opportunities you need. So अब आपको clearly एक idea है कि what the interviewer is looking in from you. So you can, give those answer what he expect. Since you are going to blow your own trumpet, it has to be done in discreet, subtle, diplomatic and expert manner. It should not be too loud, blaring or jarring. But you should keep in mind that you should not sound very overconfident at the time. You should not be too loud or you should not be too jarring, because that promises a very negative impact for you. So interview after all is nothing but a face-to-face conversation with a purpose. So if you make the conversation interesting and enjoyable, your purpose is achieved. So there is many a times it is seen that interview का एक तरीके से हवा बना देते हैं. So this is a very misconception, but it is nothing but a face-to-face conversation जिसमें सामने वाला इंसान आपको जानना चाहता है और वो बेसिकली ये जानना चाहता है कि क्या आप केपेबल हैं काम करने के. और आपको पता है कि अगर आप केपेबल हैं और आपके अंदर वो क्वालिटीज है, सो यू जस्ट नीड टू एक्सप्रेस देम. इन बोथ केसेस यू मस्ट एक्सरसाइज इनिशिएटिव टू से द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम. यू शुड नो कि आपको कब किस टाइम पर क्या बोलना चाहिए. ठीक है. Then we have group discussion. So group discussion is nothing but a discussion on any topic in a group. It is a sort of public speaking in which several candidates in a group take part. Each member expresses his opinions on the subject topic given by the GTO, that is the group task officer on the spot. It is thus a spontaneous conversation and not a pre-planned one. The topics for discussion are normally given from the current affairs or social topics. So this exercise facilitates the assessment of certain traits in candidate's personality. It depicts his quality of leadership and social adaptability. Since the group is leaderless, this vacuum is filled by the candidate who demonstrate officers-like qualities. He must know tremendous self-confidence and determination. When confronted with odds and stiff opposition, he should contain the best of bright ideas within the time limit.
सो ग्रुप डिस्कशन कुछ नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन में आपका एक जीटीओ होता है, ग्रुप टास्क ऑफिसर होता है, जो आपको किसी भी करंट अफेयर के सोशल टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक देगा, ठीक है। उस टॉपिक पर आपको एक ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। आपको अपने व्यूज प्रेजेंट करने हैं लोगों के साथ। सो ग्रुप डिस्कशन आपको किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। सो सिंस आपका एक नया नया ग्रुप बना है, आप लोगों को जानते भी नहीं हो, तो उस ग्रुप में अभी कोई लीडर नहीं है, तो ये जो वैक्यूम होता है लीडर का, ये फिल ऑन होता है उस इंसान से जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जिसके पास नॉलेज होती है। सो यू नो यू कुड बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, इवन यू कुड बी ओवर कॉन्फिडेंट, बट अगर आपको उस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, आप उसमें उस टाइम पर कुछ भी नहीं बोल सकते। सो नॉलेज इज द सुपीरियोरिटी इन ग्रुप डिस्कशन। यू हैव टू बी अपडेटेड एज पर द करंट अफेयर और सोशल टॉपिक्स विच इज प्रिवेलिंग इन योर इन्वायरमेंट। So you must be aware कि आपके आसपास क्या हो रहा है. You must examine the subject in a cool and calm atmosphere. So when the topic of the group discussion is given to you, first what you have to do, you have to examine the topic in your mind. You have to collect the points which you would say. You have to analyze your points कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है या नहीं. And then अगर आपके अंदर कोई shyness या hesitation आ रही है, you have to shed that thing. So कोई भी member who possess initiative, tact, self-confidence and drive grabs the opportunity and hence assumes the role of leader. So कोई भी कैंडिडेट जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास अच्छी थिंकिंग ऑफ पावर की कैपेबिलिटी है, वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है और लीडर के रोल को अडेप्ट कर लेता है. सो हर एक मेंबर जो ग्रुप में होता है, ये वो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने आइडियाज़, ओपिनियन को एक्सप्रेस करे, ठीक है. आपको किसी भी टीम के मेंबर को ऑफेंड नहीं करना है. अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करते हैं, सो यू हैव टू very orderly and calmly say that I beg to differ from you. आपको शो ऑफ नहीं करना है, सेल्फिश नहीं दिखाना है कि that you are selfish, और आपको अनडिजायरेबल गेस्चर और मैनरिज्म नहीं करना है. चीयरफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए. जब आपकी टर्न आएगी आप तब बोलिए, बहुत एम्पैथेटिकली, लॉजिकली और कन्विंसिंगली बोलिए. करेक्ट एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन में बोलिए. अपने पॉइंट जो आप बोल रहे हैं उस पर टिके रहिए, उसको बार बार चेंज मत करिए, और डू नॉट बीट अबाउट द बश, ठीक है. हाईलाइट होने के चक्कर में बिल्कुल अलग ही हाईलाइट मत हो जाइए, ठीक है. यू हैव टू बी हाईलाइटेड इन अ वेरी गुड वे. Then we have lecturate. So lecturate is a short lecture. It is a sort of short speech test imparting knowledge and passing information. SSB lays emphasis on the power of speech. SSB जो है वो आपकी power of speech देखना चाहता है, यानी कि कितनी अच्छी तरीके से कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट्स को इम्प्रेस कर सकता है, कितनी अच्छे तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, फ्लुएंटली बोल सकता है, उसके क्या मैनर्स हैं, क्या उसकी इलास्टिसिटी ऑफ थॉट्स है, और कितने अच्छे तरीके से वो अपने थॉट्स को डिलीवर कर सकता है. सो रिमेंबर, स्पोकन वर्ड्स रूल द वर्ल्ड. सो दिस इज अ वेरी नाइस थॉट विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं दे कैन रूल द वर्ल्ड. द ग्रुप टास्क ऑफिसर gives each candidate a card on which 3 to 4 topics are printed relating to current affairs, political events, or topics in social, economic, environment, and technology. Each candidate is called by turn to pick up a card. He is asked to select any one of the topics given therein. He is then allowed to go a little away from the group and prepare his speech or lecturate for about 3 minutes. ठीक है. तो ग्रुप टास्क ऑफिसर जो होगा वो आपको एक कार्ड देगा. उस कार्ड में कम से कम 4 या 5 टॉपिक्स लिखे रहते हैं रिलेटिंग टू द करंट अफेयर्स और सोशल टॉपिक. उस टॉपिक में से आपको कोई भी एक टॉपिक चूज करना है, और फिर वो आपको ग्रुप से कुछ टाइम के लिए, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अलग भेजेगा, और उस टाइम पीरियड में आपको अपनी 3 मिनट्स की स्पीच या फिर लेक्चरेट जो है वो आपको प्रिपेयर करना है. फिर वो शॉर्ट स्पीच आपको सुनानी है इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 to 5 मिनट्स. देन एक एक्सटेम्पोर लेक्चर होता है जिसमें आप देखा जाता है कि आपकी क्या एलिक्वेंसी है, कितनी अच्छी तरीके से आप अपनी स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं. सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे उसकी कैंडिडेट की नॉलेज भी चेक की जा सकती है, और उसकी वे ऑफ थॉट और वे ऑफ थिंकिंग को भी हम टेस्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.